NEET exam is now very close and if you have been following our videos from the start then you know कि आपको अभी mock test देना है. So generally if you are giving mock test, the first most important problem that all of you must be facing is that you are stuck with low scores, and to combat that I have made this video for you to help you resolve this problem. पहली बात तो आपको अपने मन में समझ लेना है कि मॉक टेस्ट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रैकिंग नीट. सो इसके बिना आपका क्लियर नहीं होने वाला है नीट. सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द पैटर्न ऑफ मॉक पेपर, कितने फ्रीक्वेंसी में देना है, कैसा अप्रोच होना है, कैसे रियल टाइम एग्जाम फील लाना है, ये सब चीज़ मैंने पहले वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है. सो प्लीज़ रेफर टू दोज वीडियोज़. इट हैज़ बीन मेड सेपरेटली फॉर फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स. एंड द सेकेंड पॉइंट विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट मॉक टेस्ट देने के बाद you have to stress on analyzing the mistakes that you made in that test. To stress on the importance of mock tests, I have mock test analysis. I have made this diagram for you. So if you see the wheels, you'll understand कि only if the wheel of analysis moves, only then will the wheel of mock test and MCQ practice moves forward. In simple words, अगर आप analysis करोगे तभी आपका mock test and MCQ practice में improvement होने वाला है. So how will you analyze the mistakes? I have broken it down for you into 3 steps. 1, 2, 3. So पहला वाला है कि first you have to mark the question which you got wrong. मतलब एक highlighter से या फिर एक पेंसिल से बस एक टिक मारना है कौन सा क्वेश्चन आपका मिस्टेक हुआ है. It will just serve as a pointer to show you कौन सा क्या मिस्टेक है. सेकेंड वन कि अगर आपके पेपर के पीछे या बुक के पीछे सोल्यूशन है क्वेश्चन का, उसको पढ़ना है. Now this is optional because in some cases these solutions are not provided. So of course in that cases you won't be able to read the solution. So this is why this is optional. लेकिन अगर आपको दिया हुआ है solutions then please read this because that is important. Then third step is absolutely not compromisable is reading the relevant theory. मतलब जो question आपका mistake हुआ है उसका जो relevant theory है उसको आपको पढ़ना है and you have to solidify your concepts because our point is that कि अगर ये question फिर से आपका आ जाए especially in your NEET exam तो फिर ये mistake आपसे फिर से नहीं होना चाहिए. So correcting your mistakes is a very important part. So ये जो reading the relevant theory इसको भी थोड़ा सा expand करके I will be explaining to you किधर से कैसे पढ़ना है. So for biology and inorganic chemistry, if you read NCERT alone, that's more than enough. Reading any other book, textbook, any other sources is totally useless in the context of NEET because NEET में bio और inorganic chemistry जो memory based subjects है completely NCERT से आते हैं. So whatever you got wrong, read the relevant NCERT portion of that part and that will be good enough. And read it properly. Don't just give it a skimming through. Don't just read ऊपर से. Properly पढ़िए, समझिए चीज़ों को from NCERT and that is adequate. Then moving on to organic chemistry, I know organic chemistry is a problem for most of you. लेकिन आपको doubts तो clear करना ही पड़ेगा वरना same mistakes if you make in your exam that will be very bad. So for your organic chemistry you have to use a combination of NCERT and notes. So organic chemistry में we can divide into 2 parts. एक होता है conceptual part, एक होता है data based मतलब जो memory based section होता है. So जो conceptual based जो चीज़ें हैं जो आपको mistake हो रही है उसके लिए you can refer to your notes or other textbooks because NCERT में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए रहते. इट्स मोर ऑफ अ मेमोरी बेस्ड बुक. सो इफ़ यू हैव मेड अ मिस्टेक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन विच इज़ मेनली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ देन यू हैव टू रेफर टू योर नोट्स और अदर टेक्स्ट बुक्स विच यू हैव फॉलोड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर नीट. ऑन दी अदर हैंड अगर आपका मिस्टेक हुआ है ऑन अ डेटा बेस्ड क्वेश्चन, ऑन अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, देन ऑलवेज रेफर टू द NCERT डेटा और द NCERT information which is there. Do not refer to any other book for data information. For छोटा सा एग्जाम्पल है जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समटाइम्स यू आर आस्क्ड टू कंपेयर मतलब you have to order in the arrange of acidity of the pH of certain phenols like O phenol, P phenol. इनका जो acidity है इनके बेसिस पे आपको उसको अरेंज करना है. तो इसके लिए जो डेटा है दैट इज़ गिवन इन अ चार्ट इन NCERT. डू नॉट फॉलो एनी अदर बुक फॉर दीज चार्ट्स एंड डेटाज, ओनली फॉलो NCERT. देन मूविंग ऑन टू फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री जो आप सब लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड एंड फार्मूला बेस्ड है. सो फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज द रेलिवेंट फार्मूला. जिसका आपका मिस्टेक हुआ है उसका रेलिवेंट फार्मूला रिवाइज कर लो एंड देन रीड द नोट्स या फिर रीड द जिधर से बुक जिस बुक से आपने फॉलो किया है प्रिपरेशन के टाइम उस बुक से पढ़ लीजिए. सो सिंस इट्स न्यूमेरिकल बेस्ड इसमें ज़्यादा मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुछ जगह में NCERT की ज़रूरत पड़ सकती है जब डेटा का इस्तेमाल होता है लाइक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक डेटाज देन यू कैन रेफर टू NCERT. बट अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर फार्मूला एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यू कैन रेफर टू योर नोट्स एंड अदर टेक्स्ट बुक विच यू हैव यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर NEET preparation.
अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मेकिंग अ 20th नोटबुक. ये भी मैंने अपने पहले वीडियोज़ पर स्ट्रेस किया हुआ है, लेकिन फिर से मैं छोटे से बता देती हूँ. सो इफ़ यू फील दैट देयर आर सम स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट या फिर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो, किसी तरह से भी याद नहीं हो रहा है, देन इन चीज़ों को एक साइड में पतला नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा. नाउ नो मेक श्योर दैट दीज मतलब जो भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो रहा है सब एकदम लिख ले, ऐसे मत करना है, बिकॉज दिस इज़ द बुक विच यू विल रिवाइज द नाइट बिफोर द एग्ज़ाम. तो फिर अगर ज़्यादा मोटा बुक हो जाएगा तो फिर आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा. So for an example, you make a mistake, right, and then you attempt to correct it. You read the theory, you read the formula, you attempt to correct it. फिर से same mistake हुआ in the next mock test. Again you try to read, try to correct, try to clarify. फिर से अगर मिस्टेक होता है इन द थर्ड टाइम मॉक टेस्ट में ऑन द सेम कॉन्सेप्ट ऑन द सेम क्वेश्चन, देन यू कैन राइट दैट थिंग डाउन इन दिस बुक, बिकॉज देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपको कुछ रिपीटेड मिस्टेक हो रहा है इस चीज़ में, सो फिर आपका मेमोरी में नहीं रह रहा है. सो फॉर दैट यू कैन मेक अ 20th नोटबुक. लेकिन प्लीज़ इंश्योर दैट ऑलवेज फर्स्ट ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स. एकदम डायरेक्टली इसमें नोट नहीं करना है, बिकॉज वरना बुक बहुत मोटा हो जाएगा ना, आपको टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने के लिए एग्ज़ाम के पहले वाले रात को. So that's it, students. These are my little tips and tricks for you how you can improve your score on the mock test. Happy studying and work hard.